بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. گزشتہ لیکچرز میں ہم نے یونٹ نمبر 4 کو کمپلیٹ کیا. یونٹ نمبر 4 جو بیسک لیبارٹری ہیزرڈز اینڈ ایکسیڈنٹ سے متعلق ہے. لیبارٹری ہیزرڈز کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور لیبارٹری میں درپیش عام طور پر ایکسیڈنٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا. ان ایکسیڈنٹس کو مینیج کیسے کرنا ہے اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. تو ہمارا یونٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہو چکا. نیکسٹ ہم نے یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے. یونٹ نمبر 2 جو کہ بیسک لیبارٹری ایکوپمنٹس کے متعلق ہے. بیسک لیبارٹری انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ انسٹرومنٹس، وہ ایکوپمنٹس جو عام طور پر لیبارٹری میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہمیں مینیج کیسے کرنا ہے، ان کو استعمال، ان کو سٹارٹ اپ کیسے کرنا ہے، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کی مینٹیننس کیسے کرنی ہے، اور اگر کوئی ٹربل آ جائے تو اس کو ٹربل شوٹ کیسے کرنا ہے. تو ہم آج کے لیکچر کے اندر ہم بیسک لیبارٹری ایکوپمنٹس کا انٹروڈکشن لیں گے. وہ ایکوپمنٹس جو ایک عام لیول کی لیبارٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں. لیبارٹری میں بے شمار قسم کے ایکوپمنٹس استعمال ہوتے ہیں. کچھ مختلف لیولز کی ہم نے لیبارٹریز پڑھی، BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4. تو ہمارا جو لیکچر ہے وہ عام لیبارٹری ایکوپمنٹس کے جو ایک لیبارٹری کا ایسنشیل پارٹ ہیں. جیسے جیسے لیبارٹری ایڈوانس ہوتی جاتی ہے، اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے، اس میں استعمال ہونے والے ایکوپمنٹس بھی مزید ایڈوانس ہو جاتے ہیں اور وہ جدید قسم کے آلات سے مزین ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا جو انٹروڈکشن ہے سلیبس کے اندر، وہ ہم جنرل انسٹرومنٹس کے متعلق پڑھیں گے جو کہ عام طور پر لیبارٹری کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو ہمارا آج انٹروڈکشن لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم 1 بائی 1 کر کے ایک ایک انسٹرومنٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو لیبارٹری ہوتی کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے پہلے لیکچرز کے اندر. لیبارٹری از اے روم اور اے پلیس equipped with for the performance of test, experimentation, investigative process. تو لیبارٹری ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں. بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے میں ہم مختلف قسم کے کلینیکل اسپیسیمن پر ٹیسٹ کرتے ہیں. میڈیکل لیبارٹری کا ہی ایک ایڈوانس شعبہ ہے جس میں ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اب میڈیکل لیبارٹری اور کلینیکل لیبارٹری از اے لیبارٹری ویئر ٹیسٹ آر ڈن آن کلینیکل اسپیسیمن in order to get information about the health of a patient as pertaining to the diagnosis, treatment and prevention of disease. تو اس میں ہم کلینیکل اسپیسیمنز پر ٹیسٹ کرتے ہیں میڈیکل لیبارٹری کے اندر تاکہ ہم بیماریوں کا ڈائگنوز کر سکیں، بیماری سے بچاؤ کے لیے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکیں. لیب ایکوپمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ لیب ایکوپمنٹس ریفر ٹو دا ویریس ٹولز used by scientists working in a laboratory. تو مختلف ٹولز ہیں جو کہ لیبارٹری کے اندر لیبارٹری ورکر، لیبارٹری ٹیکنیشین، لیبارٹری سائنٹسٹ استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ان میں سب سے پہلا ہوتا ہے مائکروسکوپ. مائکروسکوپ کیا ہوتی ہے؟ مائکروسکوپ از این optical instrument consisting of a combination of lenses which magnifies the image of the object seen through it. تو ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ مختلف لینزز پر مشتمل ہوتا ہے، مختلف شیشوں پر، عدسوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور جو کسی بھی امیج کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. ان چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے جنہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں بڑا کر کے دکھاتا ہے. بیسیکلی مائکروسکوپ 2 لفظ کا مجموعہ ہے. مائکرو کا مطلب اسمال اور اسکوپ کا مطلب ہے ویو، دیکھنا، چھوٹی چیزوں کو دیکھنا. اٹ از یوزڈ فار دا مارفولوجیکل اسٹڈی آف اے ویری اسمال آرگینزم وچ آر ناٹ ویزیبل بائی نیکڈ آئی. جو عام سادہ آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے انہیں ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. مثلا بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، پیراسائٹس ہیں، سیلز ہیں، بلڈ سیلز ہیں، مختلف کرسٹلز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی انہیں دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں. تو مختلف قسم کے مائکروسکوپس ہمارے سامنے آتی ہے. ان میں سمپل مائکروسکوپ ہے، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے،
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके अलावा भी बेशुमार किस्म के माइक्रोस्कोप्स हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोस्कोप को डिटेल के साथ उसके टाइप्स और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इंक्यूबेटर क्या होता है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आमतौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर इज़ अ डिवाइस यूज टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। बेसिकली इंक्यूबेटर एक ऐसा खाना होता है, एक ऐसा डब्बा नुमा आला होता है जिसके अंदर हम अपना मखसूस माहौल को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। हम अपने उस इंक्यूबेटर के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आम तौर पर ये इंक्यूबेटर लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना होता है उस वक्त हम इंक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया को ग्रोथ क्यों करवाना होता है हम आगे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे कि हमने स्पेसिमेन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को शिनाख्त करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसको पहले कल्चर लगाना पड़ता है। कल्चर लगाकर हम बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं। जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो फिर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, अफजाइश करने के लिए एक मखसूस माहौल की ज़रूरत होती है, और वो मखसूस माहौल हम इंक्यूबेटर के ज़रिए फराहम करते हैं। द इंक्यूबेटर मेंटेन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर कंडीशंस such as the carbon dioxide and oxygen content of the atmosphere inside। तो अंदर के माहौल को, अंदर के मौसम को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इंक्यूबेटर कहलाता है। ये देखिए, ये इंक्यूबेटर एक बंद व्यू है और एक ओपन व्यू है। अंदर कल्चर प्लेट्स पड़ी हुई हैं और इनको हम अंदर के माहौल को हम ये बाहर लगी हुई नॉब्स की मदद से, और ये डिस्प्ले लगा हुआ है टेम्परेचर शो करने के लिए, इनकी मदद से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं स्टरलाइजेशन के टॉपिक के अंदर। जस्ट इंट्रोडक्शन आज हमारा है मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के हवाले से। एन ऑटोक्लेव इज़ अ प्रेशर चेम्बर यूज टू स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड सप्लाइज बाय सब्जेक्टिंग देम to high temperature saturated steam at 121 degree centigrade for around 15 to 20 minutes depending on the size of the load and the content। तो इसके अंदर हम सुपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सुपर स्टीम यूज़ करते हैं। सुपर टेम्परेचर पर स्टीम का टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है, अराउंड अबाउट 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और टाइम हम देते हैं 15 से 20 मिनट। इससे हम स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, डिस्कार्ड एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो मुख्तलिफ चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोक्लेव ओपन व्यू और ये इसका सिलेंड्रिकल व्यू। मुख्तलिफ किस्म के ऑटोक्लेव हमें अवेलेबल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑटोक्लेव है जिनके अंदर हम कल्चर मीडिया को स्टरलाइज कर रहे हैं। ओवन क्या होता है? ओवन भी ड्राई हीट इस्तेमाल करता है, स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ चुके। डिवाइस यूज्ड इन स्टरलाइजेशन, ओवन यूजेस ड्राई हीट टू स्टरलाइज। इट यूज्ड टू स्टरलाइज आइटम्स दैट माइट बी डैमेज्ड बाय मॉइस्ट हीट, ग्लासवेयर, पाउडर्स, ऑयल्स वगैरह। तो इसमें हम ग्लासवेयर वगैरह को स्टरलाइज कर सकते हैं। ओवन, क्लोज व्यू एंड ओपन व्यू। ये मुख्तलिफ किस्म के ओवन आपके सामने मौजूद है। इन्हें हम हॉट एयर ओवन कहते हैं। इनके अंदर हम टेम्परेचर, ड्राई हीट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस। लेबॉर्ट्री रेफ्रिजरेटर क्या होता है? लेबॉर्ट्री रेफ्रिजरेटर यूज फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पस। मुख्तलिफ किस्म के लिए लेबॉर्ट्री में रेफ्रिजरेटर आमतौर पर मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है, बेशुमार कामों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम रीजेंट रख सकते हैं, हम कल्चर रख सकते हैं, हम मीडिया को स्टोर कर सकते हैं, सैंपल्स को स्टोर कर सकते हैं, सोल्यूशन को रख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स को रख सकते हैं, सीरम, पेशेंट के सीरम को रख सकते हैं। तो बेशुमार कामों के लिए लेबॉर्ट्री रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होता है। मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ स्टॉक, कल्चर बिटवीन सब कल्चरिंग पीरियड,
storage of sterile media to prevent dehydration, also used as repository for thermolabel solution, एंटीबायोटिक्स एंड सीरम। तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लैब रेफ्रिजरेटर, आपके सामने उसका ओपन व्यू किस तरह से होता है। सेंट्रीफ्यूज क्या होती है? सेंट्रीफ्यूज इज एन apparatus that rotates at high speed and separates substances of different densities। तो डेंसिटी की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ अज्जा को अलहदा करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूज को मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड में मौजूद सेल्स को अलहदा करना हो, यूरिन में मौजूद सेल्स को क्रिस्टल को अलहदा करना हो, स्टूल में मौजूद स्टूल में मौजूद मुख्तलिफ पैरासाइट्स के ओवरसिस को अलहदा करना हो, उनके सेगमेंट्स को अलहदा करना हो। सेंट्रीफ्यूज मुख्तलिफ चीज़ों को उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लेबॉर्ट्री के अंदर सेंट्रीफ्यूज लाजमन मौजूद होती है। मुख्तलिफ किस्म की सेंट्रीफ्यूज जिसके अंदर हम ट्यूब्स रख सकते हैं, हम एलिक्वेट्स रख सकते हैं और फिर हम इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। बैलेंस तराजू, यूज टू मेजर एन ऑब्जेक्ट मास टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। लेबॉर्ट्री में हमें मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस, केमिकल्स, रिएजेंट्स तैयार करने होते हैं और उन रिएजेंट्स में, उन मीडियाज में, उन केमिकल्स में मुख्तलिफ अज्जा को इस्तेमाल किया जाता है। उन अज्जा की एक मखसूस मिकदार डाली जाती है और उस मखसूस मिकदार को मेजर करने के लिए हम ये बैलेंस इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ बैलेंस की निस्बत इसकी एक्यूरेसी, इसका प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा होता है। हॉट प्लेट, स्टिर प्लेट, यूज टू हीट एंड स्टिर सब्सटेंसेस, जो हीट करने के लिए, चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम हॉट प्लेट कहते हैं। तो ये भी लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है। वाटर बाथ, वाटर बाथ जस्ट लाइक इंक्यूबेटर है, लेकिन यहाँ पर हम मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बाथ इज़ अ डिवाइस दैट मेंटेन्स वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो पानी के दर्जा हरारत को मुस्तकिल रखती है, एक मखसूस लेवल पर रखती है। इट इज़ यूज इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री फॉर इंक्यूबेशन के लिए इस्तेमाल होती है। हीमाटोलॉजी में इसे हम कोगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ टेस्ट लगाने के लिए हम उनको मखसूस टेम्परेचर देने के लिए रिएजेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाटर बाथ भी आम तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर पानी भरा जाता है जिसके दर्जा हरारत को एक मखसूस लेवल पर बरकरार रखा जाता है। सेफ्टी कैबिनेट, तो लेबॉर्ट्री एजेंट के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आया था सेफ्टी कैबिनेट का। तो सेफ्टी कैबिनेट यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इट इज़ बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट इज एन एनक्लोज्ड ventilated laboratory workplace for safely working with material contaminated with pathogens। इसके अंदर हम ऐसे मटेरियल के ऊपर टेस्ट करते हैं, काम करते हैं जो पैथोजन से कंटेमिनेट होता है और ये बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट हमें और हमारे माहौल को उन पैथोजन से महफूज रखता है। तो मुख्तलिफ किस्म के सेफ्टी कैबिनेट्स हमारे सामने हैं जहाँ पर काम किया जाता है। तो एक बंद कमरे का, एक बंद चैम्बर सा आला होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं। हम जो ऑपरेटर है, जो काम करने वाला टेक्नीशियन है, वो बाहर बैठा होता है और जबकि काम इस चैम्बर के अंदर किया जा रहा होता है ताकि अगर कोई पैथोजन रिलीज़ हो तो उसी चैम्बर के अंदर रहे और फिर वहाँ से जो एयर निकलती है वो मुख्तलिफ फ़िल्टर्स, HEPA फ़िल्टर्स के ज़रिए क्लीन होकर फिर वो बाहर एनवायरनमेंट में जाती है। इस तरह ये ऑपरेटर को और एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट दोनों को महफूज रखता है। बंसन बर्नर, तो चूल्हा भी इस्तेमाल होता है, बर्नर भी इस्तेमाल होता है। मखसूस किस्म का गैस बर्नर है जो कि आमतौर पर हीटिंग और स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज़ अ कॉमन पीस ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल ओपन गैस फ्लेम विच इज़ यूज फॉर हीटिंग एंड स्टरलाइजेशन।
तो ये सिंगल फ्लेम की सूरत में हमें आग फराहम करता है, जिसे हम स्टरलाइजेशन के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेंसन बर्नर कहलाता है। इनॉकुलेटिंग लूप्स एंड नीडल्स, तो ये माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनॉकुलेटिंग लूप्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रोथ मीडिया और फॉर स्टेनिंग स्लाइड, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तार सी होती है जिसके आगे उसको मोड़ कर एक लूप सी बना दी जाती है, जिसे इनॉकुलेटिंग लूप कहते हैं। और अगर वो तार बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसे इनॉकुलेटिंग नीडल कहा जाता है। तो ये तार जो सी है ये प्लैटिनम या नाइक्रोम की बनी हुई होती है। The wire forms a small loop with a diameter of about 5 mm. The loop of wire at the tip may be made of platinum or nichrome. Needles are straight wires, no loop, used to pick up bacteria from closely packed colonies or to inoculate in a very defined area. Needles commonly used to inoculate सेमी सॉफ्ट मीडिया, तो ये इनोकुलेशन के लिए, कल्चर लगाने के लिए, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कल्चर लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की लूप्स आपके सामने हैं और नीडल्स आपके सामने मौजूद हैं, कुछ वायर वाली हैं और कुछ प्लास्टिक वाली हैं। तो ये हम कल्चर लगाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। एनारोबिक जार, एनारोबिक जार इज एन इंस्ट्रूमेंट used in the production of an anaerobic environment. ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाला माहौल फराहम करने के लिए एनारोबिक जार इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा नहीं रह सकते, ग्रोथ नहीं करते, उन्हें ग्रोथ करवाने के लिए हमें एनारोबिक जार की ज़रूरत पेश आती है। This method of anaerobiosis is used to culture bacteria which die or fail to grow in presence of ऑक्सीजन, तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाते हैं या अफजाइश नहीं कर सकते, उनके अफजाइश के लिए हमें एनारोबिक जार को इस्तेमाल करना होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के एनारोबिक जार आपके सामने मौजूद हैं। ग्लासवेयर्स, लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के ग्लासवेयर भी इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ किस्म का शीशे का सामान इस्तेमाल होता है, उनमें ग्लास स्लाइड्स एंड कवर स्लिप। Glass slide used to place specimen on the to observe under the microscope. माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम नमूने को वैसे नहीं रख देते, बल्कि उससे पहले ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा जाता है। शीशे का एक चौकोर टुकड़ा होता है मुस्ततील नुमा, जिसके ऊपर हम अपने स्पेसिमेन को रखते हैं और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर फोकस करके देखते हैं। कवर स्लिप यूज टू कवर स्पेसिमेन ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, तो स्लाइड के ऊपर जब हम स्पेसिमेन रखते हैं तो उसको कवर करने के लिए कवर स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कवर स्लिप भी बारीक शीशे का एक टुकड़ा होता है। मुख्तलिफ स्लाइड्स एंड कवर स्लिप्स। पेट्री डिशेस ऑफन यूज टू मेक एगर प्लेट्स फॉर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी, तो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में पेट्री डिशेस भी इस्तेमाल होती हैं। इनके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के मीडिया को भरते हैं बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए, और मीडिया बनाने के लिए हम मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को मिक्सचर करके उनका मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। ब्लड, साल्ट, कार्बोहाइड्रेट, डाइज, इंडिकेटर्स, अमाइनो एसिड्स एंड एंटीबायोटिक्स, तो ये सारे मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस्तेमाल करके हम एगर या कल्चर प्लेट तैयार करते हैं और उसके ऊपर हम बैक्टीरिया को अफजाइश करवाते हैं। ये प्लास्टिक की भी मिलती हैं पेट्री डिशेज और शीशे की भी मिलती हैं। पिपेट्स एंड ग्रेजुएटेड स्लर, पिपेट्स ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती हैं और ये हम लिक्विड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मिलीलीटर के अंदर। मुख्तलिफ पिपेट्स और ये सिलेंडर्स। बीकर्स, बीकर भी प्लास्टिक या शीशे के बने हुए होते हैं और ये भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मिलीलीटर के अंदर। तो मुख्तलिफ साइज़ के बीकर हमें मिलते हैं, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 लीटर, मुख्तलिफ बीकर हमें मिलते हैं। तो इनकी एक नुक्कर जो सी है इस जार की, मेजरिंग जार में ग्रेजुएटेड सिलेंडर और ये बीकर, इनकी एक जो साइड है ऊपर से दे देखें, एक तरफ बीक बनी हुई होती है। फ्लास्क, ग्लासवेयर यूज टू हीट एंड स्टोर सब्सटेंस, तो ये मुख्तलिफ
سبسٹانسز کو ہیٹ کرنے کے لیے اور اسٹور کرنے کے لیے، مختلف میڈیا تیار کرنے کے لیے ہم فلاسک کا استعمال کرتے ہیں۔ فنل ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایڈس ان پورنگ لیکوڈز انٹو اسمال اوپننگ وداؤٹ اسپلنگ دیم، اسپل سے بچانے کے لیے ہم چھوٹے سے برتن میں جب ہمیں کسی کیمیکل کو، لیکوڈ کو ڈالنا ہوتا ہے تو پھر ہم فنل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر آپ کے عام ماحول میں بھی مختلف آئل والے استعمال کرتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوبز اینڈ ٹیسٹ ٹیوب ریک۔ ٹیسٹ ٹیوب یوز ٹو مکس ہیٹ اور اسٹور سبسٹانسز، تو یہ بھی شیشے پلاسٹک کی بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب ملتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا یہ ریک ہے یوز ٹو ہولڈ ٹیسٹ ٹیوب رکھنے کے لیے۔ یہ مخصوص قسم کا ریک بھی لیبارٹری میں استعمال ہوتا ہے۔ واش بوٹلز یوز ٹو ارینج ویریس پیسز آف لیبارٹری گلاسویئر، گلاسویئر کو واش کرنے کے لیے یہ واش بوٹل استعمال ہوتے ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر، جنہیں ہم واشنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فلٹر پیپر اسپیشل پیپر یوز ٹو سیپریٹ سالڈ فرام لیکوڈ، لیکوڈ سے سالڈ کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم فلٹر پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف پورس کے ملتے ہیں، مختلف سائز کے ملتے ہیں، ان کے اندر پورس کا سائز بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، تو ضرورت کے مطابق ان فلٹر پیپرز کو لیبارٹری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔